There are many types of the sentences we want to speak in English, and whenever just you have that experience to write something in the writing skill, so there are the lots of sentences. There are the types of sentences. We should learn them first. Yeah, so welcome to my channel. Today we are going to learn about the types of the sentences. I think so all of you have listened that the assertive sentence, exclamatory sentence, so many kinds of sentences you already have listened, but whenever it times to come how to write them. हाँ, जब भी हमें कुछ सेंटेंस लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर में हम लोग बनाना चाहिए, उस सेंटेंस को किस तरह से बोलना चाहिए, या दैट इज द आल्सो पार्ट ऑफ द स्किल. सो इन दिस वे today we are going to learn about the types of the sentences. So let's see. Today's chapter is types of sentences. Actually सेंटेंस का बोलने के अनेक तरीके हैं. मतलब जिस तरह से आप लोग बोलना चाहते हो, जिस तरह से आप सेंटेंस को लिखना चाहते हो, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो सेंटेंस का कौन सा टाइप है. अगर if you understand very well the what type of the sentences are there, then you will understand the format of the sentences also. Already I have made the video on the same topic, but it was just of introduction. It was in very short way, but today we are going to learn about at the depth level what is the type of the sentence. The first one is called as assertive sentence. Assertive sentence. This one is the sentence. It is called as in the very simple format. So we will see later what is the second type of the sentence. That is called the interrogative sentence. Interrogative. Many time I think so all of you have listened it. बहुत बार आपने सुना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी स्टूडेंट मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज पे अटेंशन केयरफुली. इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन को बनाना. मतलब क्वेश्चन को बनाने के भी दो टाइप है. एक क्वेश्चन जो होता है वो वर्बल टाइप क्वेश्चन होता है. वर्बल टाइप क्वेश्चन. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यस नो टाइप क्वेश्चन. Yes no type question. Yeah, means you will get the answer in the form of yes, or sometimes it may be in no. Okay, so these are called as also yes no type question. They are called also verbal type question. It is the form of interrogative sentence. Second one is called as a WH question. हाँ, जिन क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा WH वर्ड से होती है उन्हें WH क्वेश्चन कहा जाता है, और ये दोनों क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हो वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में. हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है. जब भी आप राइटिंग सेक्शन के कुछ लिखने की कोशिश करते हो तो उस टाइम होता है कि पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फिर उनको कैसे लिखना है ये भी हमें इसमें सीखना है. ओके, दिस वन इज द सेकंड. थर्ड वन इज द फॉर्म एज कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव. What is mean by imperative? Imperative का मतलब होता है आज्ञार्थी sentences. मतलब क्या होता है, जिन सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से शुरू होती है those are called as imperative sentences. Yeah, there you will find the absence of the subject. Yeah, the sentence are always started with the verb only. Yeah, तो इसलिए उनको imperative sentence कहा जाता है. वो भी हम लोग बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. Then next आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी, ये सेंटेंस को भी बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार बोलने की भी कोशिश करते हैं. दोज आर कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड नाउ द लास्ट वन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ, और सम सेंटेंस स्टार्टेड विद द लेट सेंटेंस. या लेट सेंटेंस, देन यूनिवर्सल ट्रूथ. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं दोज also showing the universal truth. So let me once again pay your attention. Let me draw your attention here once again. There are the types of the sentences. ये सेंटेंस का ये अलग अलग प्रकार है, इनको हमको सीखना बहुत जरूरी है. एक्चुअली होता क्या है कि बहुत बार हम लोग अलग अलग टाइप के सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन कुछ
सेंटेंस का हर एक का फॉर्मेट अलग अलग होता है. या दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट आर द फॉर्मेट्स, दोज आर वेरी डिक्लेयर फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेंटेंस. यू कैन सी इन द फर्स्ट वन. पहले इसमें अगर आप देखोगे तो एसेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस इन अ वेरी शॉर्ट वे. कभी कभी बच्चों को एसेरेटिव का मतलब पता नहीं होता है, तो फिर इतना ध्यान में रख लीजिए, एसेरेटिव मतलब ही सिंपल होता है. तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, मतलब जो सादे सेंटेंसेस है. फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो कि आई हैव डन इट, ओके, मैंने वो काम कर लिया. आई हैव कंप्लीटेड दैट जॉब, मैंने वो काम पूरा कर लिया. सो दैट इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस. या some boys are also present in the classroom, this is also simple sentence. So many simple sentences are there, we always like to speak it, okay, because those are in a very easy format. बहुत सिंपल फॉर्मेट में रहते हैं. इसमें कुछ भी सब्जेक्ट वर्ब इधर उधर नहीं होता है. सिंपल जिसकी स्टार्ट ही सब्जेक्ट से होती है, बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे. लेकिन सेकंड जो पार्ट है इंट्रोगेटिव. भाई इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब क्वेश्चन टाइप, मतलब क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो उसका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ग्रामेटिकल लैंग्वेज में उसको इंट्रोगेटिव कहा जाता है. लेकिन इजी ध्यान में रखने के लिए आप बोल सकते हो कि सेंटेंस क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, मतलब जिसका क्वेश्चन ही बनता है ऐसे सेंटेंस. फिर उसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक वर्बल टाइप क्वेश्चन. अभी वर्बल कौन से होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके मतलब येस नो टाइप उनको भी कहा जाता है. मतलब इफ यू आस्किंग द क्वेश्चन in a short way and also expecting the answer in no or yes format, those are called as a yes no type question. Those are always started with verbal verbs. And second one is the WH question. Why they are called as a WH question? You can see that already there is meaning given. Those are started with the W and H words. जिन क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा W से होती है या H से होती है, where, when, which, whom, whose, जस्ट लाइक दैट. एंड हाउ मैनी, हाउ मच. तो इन क्वेश्चन की शुरुआत, इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस. फिर इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव का मतलब होता है अज्ञार्थी सेंटेंस. मतलब दोज हैव द पर्टिकुलर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस. मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर रहती है, सजेशन होता है, एडवाइस होता है, कमांड होती है, ऑर्डर होती है, रिक्वेस्ट होता है. सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस को कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है. हम लोग वो भी डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है तो आप लोगों को पता है, जैसे कि हाउ लकी आई एम, व्हाट अ ग्रेट न्यूज दिस इज, हाउ अमेजिंग. just kind of the sentences. Those are started with the sudden and something very strange feelings. हाँ, उनकी शुरुआत हाउ या वर्ड से होती है. कभी कभी मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो उस तरह से कुछ सेंटेंस बनते हैं, उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, बहुत सिंपल होता है ये भी, तो ये उसका एक अलग फॉर्मेट है. एंड नाउ सी द लास्ट वन, दो सेंटेंस आर स्टार्टेड विथ अ लेट. हाँ, I think so all of you have listened so many kinds of the sentence. Those are started with a let. हाँ, let me do it, let us do it, just like that one. ऐसे कुछ सेंटेंस जिनकी शुरुआत ही लेट से होती है उनको लेट का सेंटेंस कहा जाता है. एंड दैट इज अनदर वन यूनिवर्सल ट्रूथ. यू नो दैट द सन इज द ब्राइट. हाँ, मतलब सूरज में तेज है तो है, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. मतलब द अर्थ इज एन राउंड, द अर्थ इज राउंड. मतलब ये जो कुछ सेंटेंस होता है कि मतलब उनको एक्सेप्ट करना है हमें, दैट इज वो सिंपल फॉर्मेट में आता है, दैट इज द रेयर थिंग. ओके, बट यू हैव टू पे द मोर अटेंशन to this one: assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and the last one is let sentence and another one. So these are called as the types of the sentences. I have already made the one video in the very beginning when I just started my this YouTube journey. At that time I have made the such kinds of the video also, but it was not in detail. So but now you can study one by one, because those are the very different format. Those students want to just make the more preparation regarding to their exam, and if you want to accept those challenges, if you want to speak in English, then you should know these formats very well. अगर इसको आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा, फिर आप अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो. जितने भी मतलब हम जितना ही इंग्लिश बोलते हैं, जितना भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, वो सारा इंग्लिश जो है इन सब पे डिपेंड है.
मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न द ग्रामर फर्स्ट, वी हैव टू ऑल्सो मेक द शॉर्ट सेंटेंसेस. इफ यू आर जस्ट कम ओवर द ऑल डिफिकल्टीज, सो यू कैन ऑल्सो गेट ओवर द एवरीथिंग. क्यों बताया था कि इसका मतलब ही ऐसा होता है कि इफ़ यू आर यूजिंग द सेंटेंस विदाउट ग्रामर, ग्रामर के बजाय भी आप इंग्लिश बोलने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन जब बारी आती है लिखने की, सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़. जब लिखने की बारी आती है तो आपका एक फॉर्मेट फिक्स होना चाहिए. आप जो भी लिखते हैं वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में है तो दैट इज़ एक्सेप्टेड. हाँ, अच्छी तरह से लिख पाते हो तो ही वो एक्सेप्ट होगा. इसीलिए ये दोनों में फ़र्क है. ठीक है, तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट है, इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है. तो एक एक सेंटेंस का जो टाइप है हम लोग आगे के सब अलग अलग एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ टुडे we have learned about that what are the types of the sentences here. So I hope all of you understood these kinds of the sentences are actually available there and we have to study in a detail very much. इसमें अगर कुछ दिक्कत है पहले तो इसको समझ लीजिएगा, लेकिन हम लोग एक एक चैप्टर में एक एक सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट मी कंटिन्यू remaining part in the next chapter. Thank you very much. Have a nice day.